Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Cannot hear you. सर आपको हमारी आवाज आ रही है? Yes, sir. You're audible. Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You're audible. Yes, sir. Yes, sir. Students, can you hear me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're Yes, sir. audible. We can hear you. Yes, sir. सर आपको शायद हमारी नहीं आ रही। Sir, Bhavan. सर चैट बॉक्स पे देखो, चैट बॉक्स आवाज ही नहीं आई। Students, please switch off your camera. I guess first of all that thing. I request you all to please switch off your camera. Okay, sir. From my end, internet is fine, but I don't know. Maybe Google is not able to. सर बट हमें आपकी आवाज आ रही थी। Yes, sir. You were. सर ये सारी आपकी आवाज। Yes, sir. You're Sir, are we audible? राहुल पांडे सर ने लेफ्ट सर ने लेफ्ट कर दी मीटिंग। Sir, are we audible? अरे सर ने लेफ्ट कर दी मीटिंग। Sir, can you hear us? प्रेजेंट कर रहे लेफ्ट थोड़ी ना कर रहे। Yeah, I can also. सर कैन यू हियर अस? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Sir, are you audible? Students, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You're audible. Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are clearly sir. audible. Okay. So. Okay, so we are starting with our topic. So in the last class we were discussing about ionic compound. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ionic sir. compounds are Yes, sir. basically formed between metals and non-metals. And non-metal. And we learned that your metals are electropositive in nature, and due to electropositive nature, they have a tendency to donate electron. As they have tendency to donate electron, they will donate electron. And non-metals are electronegative in nature, and due to that, they have a tendency to accept electron. So they will be accepting that electron donated by metals. And on that way, they form oppositely charged ion. These oppositely charged ion experiences electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction is called ionic bond. We're discussing So your voice is breaking. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। और Your voice is broken. Sir, you are not audible. आपकी आवाज You are audible. which have I hope I'm going fine now, students. Yes, sir. Yes, sir. सर अब भाई Yes, आपकी sir. आवाज। Yes, sir. You're audible. सर बीच में कट गई थी आपकी आवाज। I don't know, there's some network issues from my side only, but I'm on Wi-Fi and Wi-Fi is working completely fine. I cannot see any issues on my router and don't know why this is happening. सर थोड़ा सा पहले समझा मैंने तो दीजिए, वो आपकी समझाया आवाज नहीं, कट गई स्टार्ट थी कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तो हम रिवाइज कर रहे थे।
अब कोवेलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है? ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, नो डाउट। Now what about this force of attraction? How that is formed? The covalent bond is formed by sharing of electron. ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड होता है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 और 4। अब इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसको क्या मिल जाएगा? डुप्लेट मिल जाएगा। या तो ये डुप्लेट अटेन कर ले या तो ये ऑक्टेट अटेन कर ले। 2 कंडीशन है इसके पास। अब आप समझिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में वेरी लार्ज एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो इसको फिजिबल नहीं बनाती है। दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। A large amount of energy is required, so this is not going to proceed. Now, due to this, your carbon is bounded to involved in sharing of electron. आसान भाषा में समझते हैं इसको कि सपोज आप लोग हम लोग किसी गेम में हैं एंड वी आर प्लेइंग सम गेम एंड वी ऑब्जर्व कि मेरे को जीतने के लिए चाहिए 8 रुपए, मेरे पास 4 रुपए ही हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे को 4 रुपए कहीं से मिल जाए। ठीक है, अब मैं एक ऐसे कंडीशन पे हूं ना, मेरे को दिख रहा है कि 4 रुपए लूज कर दिए, ठीक है, तो भी को मुझे फायदा नहीं होना। 4 रुपए कहीं से मांग के लाना भी मुश्किल है मेरे लिए, समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास क्या बोलते हैं 8 करोड़, तुम विनिंग 8 करोड़ अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम जीत जाओगे, तुम्हारे पास 4 करोड़ हैं। तो अब तुम इस बात को समझ पाओगे कि 4 करोड़ को लूज करना आसान नहीं है आपके लिए, और ना ही 4 करोड़ रुपए और लेकर के आना भी आसान है आपके लिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना ज्यादा अमाउंट लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो फिर करें क्या? अगर जीतना ही है किसी भी हालत में, तो 2 दोस्त जिनके पास 4-4 करोड़ रुपए हैं वो आपस में अपना अमाउंट शेयर कर लें और जो जज है उसको दिखा दे कि देखो मेरे पास भी 8 करोड़ है, इसके पास भी 8 करोड़ है, हम दोनों कंबाइंड होल्ड कर रहे हैं सामान को। अंडरस्टूड? यू आर नॉट ऑडिबल। बाकी को भी ऑडिबल नहीं Sir, you are होता। audible. नहीं सर, ऑडिबल। Sir, you are Audible. Sir, you are Yes, audible. sir. You are audible. Now, if Yes, I'm sir, audible, you try are- to understand that when electron gaining and losing are not feasible, it will be involved in sharing of electron. Now, Sir, you are not Sir, audible. अब आवाज Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. hello, students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I don't know why this is happening from my end. Let me check my speed. Let me have a speed test. Sir, Yes. सर आप एक स्टेटमेंट बता रहे थे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग इज नॉट फीजिबल। सर वो रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना फिजिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं आपको अगर आपको अपना स्पीड बताऊं तो इस वक्त 111 एमपीएस की स्पीड आ रही है, फिर भी ये गूगल मीट पे ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। और स्पेशली आप आप एक बार लोग, लीव करके फिर वापस ज्वाइन कर लो। मैंने किया है बेटा, कई बार किया है, बार बार हम वही तो कर रहे हैं, ज्वाइन और लीव ही तो हो रहा है। और अपलोड स्पीड आ रही है 117 एमपीएस की। अब इससे ज्यादा क्या ही देगा स्पीड, ये भी है ना? समझ पा रही हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। Can't say anything.
अब बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये तीन तरीके से क्लासिफाई होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल फिर आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड। बेटा आप में से किसी का कैमरा ऑन तो ऑफ कर दो, शायद हो सकता है वो डेटा कुछ इश्यू आ रहा हो, कुछ गूगल नाराज हो मुझसे, तो मेरे को सर चांद आपका आया। इंटरनेट क्या? हेलो, यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा होगा, इसी वजह से बीच बीच में जो है ना आपकी आवाज कट जाती है। अच्छा, ऐसी बात है। यस सर। यस सर, कांस्टेंट नहीं है। यस सर, थोड़ा ऊपर नीचे हो। यस सर, थोड़ा ऊपर नीचे। ओके, सर यस। सर मुझे पूछना था कि मतलब कार्बन को, मतलब अगर मुझे ऐसा करना हो कि कार्बन को मैं डोनेट करवा दूं, तो मुझे अगर मैं बाहर से एनर्जी दूं तो वो डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर अगर मैं चाहता हूँ कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे अपने रिएक्शन में, वो हम्म, शेयर ना करे, तो मैं हम्म। अगर बाहर से एनर्जी दूं तो वो क्या ऐसा हो सकता है? बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मतलब उस टेम्परेचर पे जाके ऐसा हो सकता है कि वो एटम ही ब्रेक हो जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो? वो फन एंड एडवेंचर साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर जाएगा बच्चा उसमें, जो भी करेगा। तभी तो कह रहा हूँ फिजिबल नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके सर। समझ पा रही हो? यस सर। चलो, जी सर। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे हम। क्या होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? सिंपल सी बात सर है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। वेरी गुड। यहाँ पे दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। शेयरिंग से ऐसा सिंपल सी बात है बेटा, कभी कभी होता है जैसे हमारा ये एग्जाम का वो है सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ये रबड़ लेके नहीं आया, तो ये आपकी ओर देखेगा उम्मीद और नजरों से, आप अच्छे इंसान हो, आप बोलो रबड़ ले लो, आप भी यूज कर लो। फिर उस पूरे पेपर में ये रबड़ भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है ना? समझ रहे हो? सर तो उस केस में अगर आप Yes, sir. ऑब्जर्व करो यस तो सर। जो रबर है उसमें दोनों की ओनरशिप आ गई ना, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही उसको यूज कर रहे, दोनों की ओनरशिप हो गई। am I right? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो बस ये समझाना चाहता हूँ मैं कि अब इसके एग्जांपल देख लेंगे तो आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन सर की शेयरिंग Cl2। होती है। पहला सबसे सिंपल लेंगे H2, ठीक है? तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? ये होता है। अब दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक ही सपना है, डुप्लेट पूरा हो जाए। अब डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? ये एक दूसरे की ओर देखेंगे उम्मीद भरी नजरों से, और ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और इसके कारण क्या होगा? इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट, सर ऑक्टेट। सॉरी डुप्लेट पूरा, यस सर, सर डुप्लीट। है ना? डुप्लेट। हाँ बेटा डुप्लेट, बाय मिस्टेक आई सेड दिस, सॉरी। तो डुप्लेट आपने देखा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पूरा हो गया। देन हमेशा H2 के फॉर्म में प्रेजेंट सर रहता है। इसमें Yes, दोनों इसलिए हम कहते इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग हो रही है ना। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि नेटिव फॉर्म। नेचर में आपको हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये स्टेबल इस फॉर्म में हो जाता है। क्या बोल रहे हो? ओके सर। सर इसी की वजह से ना कि डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है दो पे। वेरी गुड। दो क्या सभी को समझ में आया ये? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। Cl2 अपनी Yes, अपनी sir. कॉपी बनाओ। सर इसमें शेयर तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना हाँ बोलो। सर।
इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हाँ हैं ना वैसे तो। हाँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये अपना इसके साथ कर रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है किसका किसके पास है। तो इसके पास भी दो और इसके पास भी दो। Cl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ इस तरह से। ओके सर। सर सर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, अरे इलेक्ट्रॉन जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वही बनाना बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सर। कहते हैं इसको। यस सर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, दोबारा समझा दीजिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। आप अगर देखो यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन आटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ। तो इसका डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, खत्म हो गई बात। और डुप्लेट पूरा होना था हाइड्रोजन में। तो मैंने वीडियो ऑन किया है, ऑफ पहले कर एक दे। बता दीजिए। है। सर डन। सर डन। सर हो गया। सर डन। वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सभी इस बच्चों इसका। सर बना लिया। सर पोटेशियम भी K2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है सर। नहीं बेटा, बात करते हैं Cl2 की। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। आप देख सकते हैं क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सर दोनों क्लोरीन फर्स्ट एटम वाला के बीच में। हाँ, क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? Yes, sir, you are audible. यस Yes, सर। sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. ये जो अपने सर्कल Yes, sir. है डॉट Yes, डॉट sir, you're करके, audible. वो नीचे क्या चला शो गया कर ना? रहा है? ये स्क्रीन मेरा नीचे नीचे चला गया ना? नो सर। सर जो ये क्लोरीन के चारों तरफ आपने सर्कल ड्रॉ किया है डॉट डॉट करके, वो क्या रिप्रेजेंट कर? बेटा मैं ऑक्टेट दिखा रहा हूँ। उस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, देखो ना, 2 4 6 8। सर जो H2 वाला एग्जांपल था वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था। हाँ, और ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का है। देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। सर अब इसमें एक कोवलेंट इलेक्ट्रॉन होगा ना? क्या क्या बेटा? सर कुछ नहीं पूछा। सर हाँ बोलो। ये जो आपने सर्कल्स बना, मतलब ये डॉटेड सर्कल बनाए हैं सर, ये वो शेल्स को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? बेटा ये शेल नहीं है, मैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी एग्जाम में यही करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन देखिए, फिर इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन देखिए। ऑक्टेट पूरा कर दिया है। सर वैसे सच में ऐसा होता है क्या? मतलब अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से देखें तो नहीं वो बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सर्कल नहीं होता है। यह बस मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करने बता रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, रियलिटी में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं शेयर बेटा। पर 10th में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जब 11th में आओगे तो लोब्स आएंगे, ऑर्बिटल्स आएंगे। अभी छोड़ दो, जो सीखा, जो सिलेबस में वो सीखो, इसी नंबर मिलने हैं अभी तो, है ना? सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है ना उसमें तो। क्या बनता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाद में बात करेंगे। ये भी एक तरह का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है? सर सर समझ में आ गया। मेटल्स में एटमॉसिटी हमारी 1 की होती है। ज्योमेट्री पे काम नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? हेलो हेलो, आवाज आ रही बच्चों? यस सर, Yes, sir.
मास्टर समझ कंफ्यूज में कर आ रहे गया हो, सर। बच्चा यस नहीं बोल सकता है। यस सर, आगे पढ़ा हुआ। When you already know that maybe today I'm facing some internet problem, you are required to be proactive to respond whenever I ask you hello, hello, say hello, hello. So you have to say yes, sir, you are audible. आनंद, आनंद नहीं, क्या नाम था बेटा तेरा? वैभव विशाल झा। हाँ वैभव, वैभव ध्यान रखना बेटा इस चीज का। यस सर। तो ये हुआ Cl2 मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं CH4 की। तो क्या आप सभी CH4 मॉलिक्यूल बना सकते हैं? यस सर। इसका Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डॉट यस सर। बनाएंगे। जो नहीं बना सकता वो कोशिश करे, जो कोशिश भी नहीं करना चाहता वो बाकियों को देखिए। सर हम इसे लाइन से भी बना सकते हैं ना, जो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करने का। ओके सर। Do it in a simplistic manner. Whatever is being taught to you need to be followed religiously. यस सर, बना लिया। सर डन। सर कैमरा ऑन करके दिखाना है। नहीं दिखाना है बेटा, तुम्हें पता है जब नेट की प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दो। अब बात करते हैं क्या सा स्ट्रक्चर बनने वाला है इसका। जो कार्बन का वंस अगेन वही 2 and 4 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही 4 हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ढूंढ रहा है कि मेरा मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए, कार्बन ढूंढ रहा है मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो कार्बन ने बोला कि चलो एक इलेक्ट्रॉन आप चारों शेयर कर लेता हूँ, पर कंडीशन ये होगी कि जब दुनिया पूछेगी कि मेरा ऑक्टेट कहाँ है, तो आप चारों के एक इलेक्ट्रॉन को साथ लेके मैं दुनिया को अपना ऑक्टेट दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिर इस पे जवाब आया किसका? इसका जवाब आएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप हमारे डुप्लेट को दिक्कत नहीं करोगे, हमें आपके ऑक्टेट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाओ और खाने दो। सर इसमें हमने हाइड्रोजन को सर साइड साइड में क्यों लिया? मेरी मर्जी, मेरा मार्कर। तू ऐसा बना बेटा, तू ऐसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ऐसा बना, तू ऐसा बना दे, ठीक है, तू ऐसा बना। सर हमने 4 इन सब में सर नंबर आपने काट लूंगा, इन सब में मास्टर नंबर काटने में पूरे पूरा सार है। ये डायग्राम नीट एंड क्लीन है। देखो अभी आप मुझसे एटम के अरेंजमेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट आपको सिखाया ही नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। जब तक ओरिएंटेशन बताया नहीं जा रहा है, जब तक हाइब्रिडाइजेशन बताया नहीं जा रहा है, जब तक ऑर्बिटल बताया नहीं जा रहा है, तब तक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट अ कंसर्न। बस अरेंजमेंट ऐसी दिखाओ कि टीचर देख के खुश हो जाए। वो घर से लड़के आया, उसको नाश्ता नहीं मिला जितनी आपकी कॉपी चेक कर रहा है बोर्ड की, और सोचो वो घर से खाना खा के नहीं आया, पूरा गुस्सा तुम्हारी उस गंदे डायग्राम पे निकाल देगा, ठीक है। ऐसे डायग्राम पे भले वो टेक्निकली सही होगा, लेकिन उसका मूड खराब हुआ काट देगा। और याद रखना, क्रॉस चेक जब होती है कॉपी, तो उसमें ये चेक होता है कोई क्वेश्चन अनचेक है क्या, ये चेक नहीं होता। वो एक मास्टर दूसरे मास्टर से झगड़ा नहीं करेगा तुमने इस देश के भविष्य में नंबर कैसे काटा, ऐसा नहीं होने वाला। उस ये देखेगा हाँ कोई क्वेश्चन अनचेक नहीं है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। ओके सर, ओके। सर हाँ सर, कार्बन क्या सर और 3 कार्बन के साथ मिलके सर कर सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर? करता ही है ग्राफाइट में तो, है ना। और डायमंड में 4 कार्बन अटैच होते हैं कार्बन से। सर नो सर, डबल बॉन्ड में। अभी करेंगे, बात करेंगे। अभी वही राजा वाली कहानी याद है, गरम खीर बीच से खा रहे हैं मुंह जल जाएगा, है ना। हाँ होता है डबल बॉन्ड पे। अरे बेटा तुम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो टॉपिक चलता है ना तुम्हें वो नहीं पढ़ना, तुम्हें कुछ अलग पढ़ना है। ट्रस्ट योर टीचर, वो तुम्हें बताएगा। जब मैं टॉपिक खत्म कर दूं फिर आप मुझे बताओ आपने ये नहीं बताया, हाँ फिर आप मुझे बताओ। लिव इट टिल दैट टाइम,
आई टोल्ड यू आएगा, खत्म करो उस बात को। ऐसी हर क्लास में हमारा टॉपिक हर बार डाइवर्ट होता है, वी विल नॉट डू दैट। स्क्रीनशॉट लो या डायग्राम को बनाओ फटाफट। सर बना लिया। चलिए सर डन। सब बना लिया सर सर। और बना लिया। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है C2H4। अपनी कॉपी भी बनाइए और अगर कर सकते हैं तो व्हाट्सएप करिए मेरे को, मैं आपको व्हाट्सएप से चेक कर लूंगा। नहीं सर व्हाट्सएप तो नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर सकता है वो इसका स्ट्रक्चर बना के मेरे को भेज सकता है, मैं देख लूंगा। क्योंकि आज आई गेस कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बट फोन में तो सही चल रहा है मेरा वाईफाई। अच्छी खासी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो आप व्हाट्सएप भेजो मुझे, मैं व्हाट्सएप पे देख लूंगा। Those who want to send, okay? जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत नहीं है सर को दिखाने की तो नहीं दिखाइए। बस आपके पास समय है 2 मिनट का इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। डन सर मुझे सर दिक्कत आ रही है सर। चुप रहो सर कैसे बनाए? सर एक बार अपना नंबर शेयर कर दो। जिसका सर, हो एक गया बार डाउट चुपचाप रहो, बैठे बेटा। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, उन्हें भी करने का मौका दो, उनका भी हक है ना। शांति से करें। आप तो गंडन करोगे तो वो उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, उनको लगेगा देखो हम इतने लो हो गए। 2 मिनट बोला है ना, तो 2 मिनट का मतलब अभी कितना हो रहा है? अभी हो रहा है 1858 हो रहा था, 1859 हो गया। 1 मिनट और है। सर हो गया। एक डाउट था बोलो सर। जैसे मैंने पढ़ा था कि सर कुछ में तो बहुत मतलब जैसे स्ट्रक्चर में तो है सर, एक स्ट्रक्चर में मतलब स्पेसिफिकली 107 डिग्री का एंगल था दो एटम्स के बीच में। तो सर ऐसे स्पेसिफिकली हम एंगल कैसे ले सकते हैं कॉपी में, और क्यों लेते हैं सर? ये बहुत हाइब्रिडाइजेशन। दुख भरी दास्तान है, ठीक है। ये तुम्हें अगले भाग में मालूम पड़ेगा। ओके सर। फिर कह रहा हूँ ओरिएंटेशन बताया ही नहीं तो काहे परेशान हो, उसको छोड़ दो। ओके सर। बेटा जिसने भेजा है कौन है? कौन भेजा ये डाउट ही पूछ रहा था, कौन था ये? कौन है ये? उदय शर्मा। उदय बाबू यस सर। बात बताओ मुझे, तुमने दोनों कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ दिखाई है? बस एक बटरफ्लाई बना के भेज दिया तुमने मेरे को। दोनों कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो भी तो दिखाओ। पूछता है केल्विन आपसे कि आपने क्यों नहीं किया है? यस सर दिखाएं। सर मुझे उसको ये करेक्ट समझ नहीं आया नीट एंड क्लीन कैसे बनेगा? साफ सफाई से। सर मतलब कैसे प्लेस करूँ सर हाइड्रोजन को इस वाले केस में ऐसे? बेटा तेरा डायग्राम सही है, डायग्राम सही है। बस 2 कार्बन जो है उनकी, आदित्य बेटा इलेक्ट्रॉन दिखाने, आपको लाइन नहीं दिखाने। विशेष मैथ की कॉपी त्याग दो भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है। तुमने भी यही काम किया है, तुमने भी दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं दिखाई। वो कौन दिखाएगा? सर वो तो अब आप ही दिखाओगे। अच्छा कौन बोला ये? मतलब सर हमें तो आता ही नहीं ना, इसीलिए। अच्छा तो क्या फायदा है तुम्हारा फिर क्लास लेने का, तो तुम आ ही नहीं रहे थे। ये कौन है? ये किसने भेजा? तनिष्क। तनिष्क बेटा तुमने 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर कर दिए भाई, ऐसा मत करो। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। एक बॉन्ड बनता है, फिर एक और बॉन्ड बनता है। और तुमने क्या बना दिया है? तुमने ऐसे बनाना था, ये था। मैं एक चीज करता हूँ, चलो नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। C2H6 का स्ट्रक्चर बना दो। चलो मैं उम्मीद कर सर रहा था थोड़ा सा C2H4 पे भेज कॉम्प्लेक्स। दिया सर।
कोई बात नहीं, जो ये नहीं बना पाए हैं वो ये बना दो। सर अब सही है मेरा वाला? ये कौन है? इशिका। इशिका बेटा तुम भी वही कर रहे हो, दोनों कार्बन है, दोनों बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ। सर मैंने किया तो है, लेकिन मेरे को श्योरिटी नहीं है कि सही है या नहीं है, और मैं व्हाट्सएप पे भेज तो भी नहीं वही सकता। दास्तान है आपकी। ये कौन है? बच्चे का नाम क्या है? C2H6 का बन शुभोश्री गया। पॉल। ठीक है, गेटिंग थिंग्स। देखो बेटा, सर मैंने भी भेजा उत्कर्ष। एक चीज याद रखना, सारी कहानी नीट एंड क्लीन वाले काम की है। वो टीचर को आपका काम दिख गया ना, अच्छा, वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, सपोज आप मेरे पास आए, आपने मुझसे 10 रुपये मांगे, मैंने को बड़े प्यार से 10 रुपये दिया। ये कौन है ये? होशियार आदित्य निगम। अरे सोनू निगम वाले काम क्यों कर रहा है तू? हाँ आदित्य, सर ये वाला बन गया। आदित्य बेटा निगम, आदित्य निगम, कैन यू हियर मी? सुनना ही चाहता हूँ तो मेरे को। कौन है कलाकार? सर वो डर गया सर। खौफ। अब फोटो भेजो, नाम भी भेजो, तुम्हारे चेहरे से मैं तो नहीं सर पहचानता। उत्कर्ष कुमार सर, मैंने भेजा, आपने देखा नहीं ये है। कौन है? पराखर। सर मैं जो लास्ट वाला हाइड्रोजन अटैच करने जा रहा हूँ, वहां पे सर कुछ लिखा हुआ है, मैं अटैच नहीं कर पाऊंगा, अजीब सा लगेगा अब देखने में वो। बेटा देखो, मुझे अजीब नहीं लगता, मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। मास्टर को अजीब नहीं लगता, वो दुखी नहीं होगा आप स्ट्रक्चर को काट देगा, और हेल्पर को बोलेगा एक कप चाय पिला, ठीक है। तो अगर आपका काम नीट एंड क्लीन है, नंबर दे देगा, नहीं है छोड़ देगा। वो इतना सेंटिमेंटल होकर कॉपी चेक नहीं कर रहा है आपकी, याद रखना इस चीज को। सर मैंने भी भेजा पर। क्या घटिया काम किया, कौन है ये? आर्यन पाठक। बेटा ऐसा डायग्राम बनाओगे ना, -5 दूंगा। सर मैंने भेजा सर एक पर ऐसा भी। लग रहा है सर माइटोसिस उत्कर्ष, मियोसिस पढ़ लिया इसने। सर उत्कर्ष सर मैंने एक बार भेजा है, वो भी बता दीजिए। सर आर्यन जैन का मेरा भी देखकर बता दीजिए। बेटा ये कौन है? ये प्रखर। प्रखर स्क्वायर बॉक्सेस मत बनाओ, सर्कल बनाओ, और ऑक्टेट दिखाओ, ऑक्टेट कैसा पूरा हो रहा है। सिद्धार्थ सर मैं बेटा, अपना एक बार। सिद्धार्थ सर गौतम, आवाज आ रही सर आपको मेरी? सिद्धार्थ गौतम, आपने बेटा स्ट्रक्चर तो बहुत गुड यस बनाया सर। है, लेकिन आपने C2H6 का बनाया है, C2H4 का नहीं बनाया आपने। सर C2H4 का भी बनाया सर, मैंने भेजा नहीं, लेकिन सर वो नीट एंड क्लीन नहीं है। ये कौन है? ये कलाकार, मैं नाम जानना चाहूंगा इसका। प्रांतिका। भाई साहब प्रांतिका, मैं इसमें क्या देखूं, ऐसा लग रहा है मुझे कार्टरैक्ट हो रखा है। सर भेजो सर C2H4 का। भेजो। सर आपको आवाज आ रही है सर मेरी? सर क्रांतिका बेटा, कैमरे में इशू है क्या? सर मैंने C2H6 का भेजा सर, एक बार देख लो। सर मैंने C2H6 का भेजा है। सर मैंने C2H6 का इतना बढ़िया बनाया, आदित्य मैं वर्मा। भेज नहीं सकता। अबे चुप रहो ऐश्वर्या, ये क्या बनाया तुमने? मैं क्या देखूं इसमें? C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तुमने क्लोरीन हाइड्रोजन दिखा दिए हैं। ऐश्वर्या, कैन यू हियर मी? यस सर। स्ट्रक्चर किसका पूछा गया, आपने भेजा मुझे किसका है?
गायब हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा बोल। सर आप मेरे को सब बुला रहे थे सर, आदित्य निगम सर, मैं बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा तूने जो काम किया वो मुझे पसंद नहीं आया। सर सर दोबारा मैंने भी एक बार करता हूँ भेजा। सर। इसने सर पर 5 जैन ने मैसेज भी भेजा कौन है सर ये? एक। सर आर्यन जैन उत्कर्ष। का 5 मैसेज डिलीट किया है। फिर वैभव। सर आदित्य वर्मा। सर उत्कर्ष कुमार। सर पर जैन। मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे लाइन बनाओ, स्टिल आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चों ने तो किया ही है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो गलत करके मानेंगे, दुनिया चाहे इधर उधर हो जाए, स्वयं प्रभु आएंगे बोले तो भी नहीं करूंगा मैं। सर मेरा नेट स्लो है इसलिए जा रहा है सर अभी। जा रहा है, रास्ते में है। हाँ सर मेरा एक बार बता दो, मेरा मिल गया उत्कर्ष कुमार। सुमित का काम बहुत अच्छा है। I'm impressed by this work. सर मेरा मिल गया सर पर जैन। सर भेज दे सर C2H4 का। तो C2H6 का सेंड कर दिया। एक्सलेंट बेटा, गुड। सिद्धार्थ वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए अब मुझे मत भेजिए, अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से स्ट्रक्चर सर हो मेरा गए। भी देख लो सर एक बार। अब बेटा समय खत्म हो चुका है। मैं तो बहुत पहले थी। अब हम C2H6 का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए सर फाइन। कार्बन कार्बन बहुत सिंपल है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर क्या है हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 6 हैं। 3 इससे अटैच होंगे, ठीक है, और 3 इससे अटैच होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट मान लो, ये होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है। अब देखना है ना ऑक्टेट। पहले डुप्लेट देखते हैं कि इसका भी डुप्लेट पूरा, 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 इसका भी डुप्लेट पूरा। अब ऑक्टेट की बारी। ऑक्टेट देखना है, देखा रहता है। ये देखो ऑक्टेट। सर ऐसा बनाएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा? पूरा नंबर मिलेगा, मास्टर घर तक छोड़ के आएगा सलाम करके। ओके सर। हाँ। सर वैसे मैंने भी ऐसा ही बनाया है, बस थोड़ा सा मेरा सर्कल जो है ना वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। तो दिस इज योर C2H6 स्ट्रक्चर। नाउ टॉक अबाउट C2H4। देखो यहाँ पे ना 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। दरअसल यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कंसेप्ट डाल के जहाँ मुझसे आपसे पूछा, मैं बस देखना चाह रहा था कि कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डबल कोवेलेंट। सर मैंने डाला है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? दरअसल दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में दो एटम है, उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दिस इज योर डबल बॉन्ड कंसेप्ट। ठीक है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो हमें पता है कार्बन के पास कितने? 4 हैं। तो ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी 2 ये किसके साथ करेगा? कार्बन के साथ करेगा। ऑक्टेट तो इसे पूरा करना ही है। तो ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। सॉरी, ये इसका शेयरिंग हो गई, ये इसका शेयरिंग हो गई, ये इसका शेयरिंग हो गई। सर बस मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे करा है, मैंने जो कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने उस पे एक ही सर्कल बना दिया दोनों चारों के ऊपर।
यस सर मेरे भी यही है। अब देखिए यहाँ पे, ये मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया इस कार्बन का, ये मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया इस कार्बन का। ठीक है, बात कर लें डुप्लेट की। डुप्लेट देखिए, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। सर यस सर। बोलो। सर हमें कार्बन के बीच में बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर, वो तो कुछ हो भी नहीं। कार्बन के बीच में सर कार्बन के जो पेयर्स हैं उनमें उनमें बनाने की क्या जरूरत पड़ी सर, उनमें तो कुछ हो भी नहीं रहा। बेटा दिखाना तो पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे कैसे हुई है, ऐसे कैसे छोड़ दोगे आप? सर मैंने सर दोबारा बनाया था लेकिन नहीं बनता सर थोड़ा। सर वैभव विशाल झा का आया, रुको, बहुत तारीफ कर रहा सर था। मेरी खिचड़ी बन गई सर, मैं तो बनाने की कोशिश करी। जो तारीफ कर रहा था बेटा इतना है नहीं। सर C2H6 का तो बढ़िया बनाया है सर। सौम्या बेटा आपने मुझे नहीं भेजा स्ट्रक्चर अपना। सर मेरे पास एक्चुअली अभी है नहीं दूसरा डिवाइस जिससे मैं सेंड कर सकूं। ओके ओके ओके। सर सर C2H4 में ना मैंने दोनों 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही सर्कल मार रखा है, वो गलती हो गई मुझसे। ओके, नो इश्यूज। सर मैंने C2H4 कैसे बनाया कि H को मैंने वर्टिकली। I hope this question is clear to you. यस सर। I'm सर जब मैंने इस वाले please take a screenshot. Please take a screenshot. Okay, I'm ड्रॉन it. सर मैंने सर हाइड्रोजन को सर ऊपर राइट और लेफ्ट में ले लिया था, Now, ऐसा हो सकता है? as you know that there are, see, एक आटम है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके सर। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। अगला है CO2। क्या आप CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस सर। यस सर बनाया जाए? ट्राई कर सकते, ट्राई करते हैं। यस सर। सिद्धार्थ सबसे पहले भेजेगा, मुझे यकीन है। सर ये भी सर सिंगल बॉन्ड का ही है ना? डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड। अब हम डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। दोनों डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा। और ये जितने बच्चे मेरी क्लास को खत्म करने से पहले सेशन लीव करते हैं ना बेटा, ऐसा मत सोचना कि आप रिकॉर्ड नहीं होते हो, ठीक है? मैं, ऐसा भी हो सकता है पीटीएफ के दौरान बता दूं आपके पेरेंट्स को ये चीज, क्लास खत्म होते नहीं है, पहले निकल लेते हैं ये। तो 73 बच्चे सर लिख रहे मैंने हैं मेरे को भेजा इस है। वक्त, तो 73 रहने चाहिए मेरे को, 74 हो गए अब, ठीक है? सो डोंट लीव सेशन। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप मिस कर जाओगे कि कौन है मनुष्य, ये प्राणी है कौन। उत्कर्ष बेटा कैसे मानेगा? मूवी देखी है, कौन सी है वो मुझे याद नहीं है, वो प्लेन में होता है, उसको बोलता है कि आपको लाल बटन दिख रहा है, बोलता है हाँ, दबा दिया, नहीं दबाना सर था। धमाल, सर धमाल में। यस सर। इसका वही, तुम लोगों का यही हाल है कि जो बटन नहीं दबानी है वही कर रहे हो। इतनी बार समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा रहे हो तो उसको करवाओ ना, आप खाली इलेक्ट्रॉन बना के छोड़ देते हो। अगेन कैल्विन वांट टू नो व्हाई।
प्रांतिका बेटा कैमरा की दिक्कत है क्या कोई? बहुत अच्छा Yes, काम sir. है ये बेटा। कैमरा बहुत आपका जो इमेज है बहुत खराब आ रहा है। तनिष्क बेटा, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऑक्सीजन के? कहाँ गए हैं? बिहार इलेक्शन लड़ने गए हैं? कहाँ गए हैं तनिष्क? यस शुभोश्री, इट्स ओके, स्ट्रक्चर इज फाइन। अनन्या आज क्लास में आई है बेटा? यस सर, रोज आती हूँ। तुम्हें पुराने स्ट्रक्चर्स नहीं भेजे? सर मैंने सर सेंड कर दिया, आपने देखा? जैसे मैंने देख भी रहा हूँ सेंड बेटा। कर दी। ये सर मैंने भी सेंड किया। अगेन वही गलती। Sir, I have also sent. सर ये मैंने नहीं किया। सर अब सही है मेरा उत्कर्ष? अब बेटा बहुत सारे बच्चे मैसेज भेजते हैं ना, नाम निकल जाएगा। मैं कुछ मेजर होगा तो तुरंत पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है? मैंने भी भेजा उदय का देख। था। वरुण अच्छा बनाया अपना स्ट्रक्चर, वरुण कुमार। ईशिका कोशिश करो कि जो कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो भी दिखाओ। ईशा, या इट्स अब देखो ईशा ने गलती क्या करी है, इसने ऊपर से इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दी, नीचे से करवा दिया है, ठीक है? ऐसा मत करो। देखो ये ऐसी गलतियां जो हैं टीचर को इरिटेट करती हैं। तो मैं आपको बस एक ह्यूमन थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर मान लो टीचर थोड़ा सा भी वो चिड़ा हुआ या फिर किसी XYZ रीजन से कुछ और प्रॉब्लम उसकी चल रही है। अब ईशिका का स्ट्रक्चर देखो, ईशा का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इस वक्त। उसने सारा काम अच्छा किया है। सर दो चारों इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में ही डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। चुप रहो। सर मेरा भी देख लो सर, पर्जन। ईशा, am I right? क्या मैंने आपका जो स्ट्रक्चर आपने बनाया मैंने वही बनाया है? ईशा कैन यू हियर मी? ईशा, ये कौन है ईशा? ईशा नहीं है कोई, है उषा है, उषा। उषा, ईशा सर देख लीजिए Yes, कौन है sir. ये? उषा नाम के नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है मेरे को, कौन है? कौन है ये? Yes, sir. कौन आप? क्या नाम है आपका? ईशा। हाँ तो ये स्ट्रक्चर बेटा मैंने जो बोर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर है। क्या मैंने सही बनाया है स्ट्रक्चर आपका? आप कुछ इसमें कमेंट करना चाहोगे? मैंने गलत तो नहीं बनाया? आपने ही सर बना के मुझे दिया। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ये तो बहुत बड़ा वो हो गया, ये तो लेटेस्ट न्यूज बताई तुमने। बाकी वो दिख रही है, मुझे भी दिख रही है मेरी स्क्रीन, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही? अगेन नेशन वांट टू नो। सर कैल्विन वांट्स टू नो। सर अब दिखा है। इस बार
नेशन वांट टू नो, ये बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया कि यहाँ छोड़ दिया, क्यों भाई? यहाँ तो आपने ऐसा काम किया है, यहाँ आपने ऐसा काम किया है ना? तो ऐसा काम ना करें। टेक्निकली गलत नहीं है ये, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, और जो टीचर चेक कर रहा होगा उसे भी नहीं आएगा। और अगर उसको तो मान लो वो ध्यान से चेक नहीं कर रहा है, उसको ध्यान चला गया इस चीज पे, उसको लगेगा गलत हो गया, इससे काट देगा फटाफट, आगे बढ़ जाएगा वो, 0 नंबर। आया समझ में? ओके सर। गलत नहीं है, पर इसमें कटने के चांसेस होते हैं। CO2 की बात कर रहे हैं बेटा, प्लीज डोंट सेंड मी नाउ। ये स्ट्रक्चर होगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लगा दिए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, मैंने लगा दिए। अब देख सकते हैं मैंने कैसे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कराई है। ऐसा होने से ये आपका ऑक्टेट पूरा, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, और ये आपका कार्बन का ऑक्टेट पूरा। क्या सभी ने ये काम किया है? यस सर। यस सर सर। मेरा Yes, sir. सर मेरे से सर सर मैंने मेरे से एक गलती हो गई सर। सर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने ऑक्सीजन के नीचे नीचे में एक्स्ट्रा लोन पेयर लगा दिया। जैसा बना दिया सर। कोई बात नहीं सर। सर ये जो 2 ऑक्सीजन के बच्चे हैं क्रॉसेस, उनको भी सर्किल कर दिया मैंने, तो गलत तो नहीं है ना? नहीं बेटा, आप उनको सर्कल क्यों करोगे? जब ऑक्सीजन का है तो उसी सर्कल करोगे ना। सर जो क्रॉसेस हैं एकदम साइड में, दोनों साइड में, उनमें से फॉर कार्बन यू कैन नॉट सर्कल देम। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2 4 6 8 ये हैं। ओके सर। सर मैं से नीचे बना दिया सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन वाले हैं सर, जो ऐसे ऊपर है नहीं सर। का। अच्छा ये कह रहा है बेटा, तू ये कह रहा है तू ये वाला यहाँ रख दिया है, ये कह रहा है सर जो ऊपर वाले हैं। मैं कह रहा हूँ सर, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसे शेडिंग दिखा रहे हो, तो ऐसे करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने बस सर एक पेयर एक्स्ट्रा दिखा दिया था इलेक्ट्रॉन का, वो काट दिया मैंने। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। यशी तुम्हारा भी नहीं दिख रहा, तुम आ जाओ यशी। नाइट्रोजन का होगा। यशी कैन यू हियर मी? यस सर। कर रहे हो सॉल्व? सर डिवाइस नहीं है अभी सेंड करने सॉल्व के कर रहे हो? लिए। यस सर। ओके कौन है ये? ठीक है शाम, अभी इट्स फाइन। अरे इतना ट्राई मत कर भाई, कौन है ये? अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर तूने अच्छा बनाया। CO2 का नाम ले लेता हूँ उस बच्चे का, आदित्य निगम। अब आया ना सोनू निगम वाली बात कही तूने, ठीक है। अच्छा तब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, 2 एटम के बीच में 3 बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, है ना? इसमें बस सर एग्जांपल, इतना ही था। और क्या पड़ेगा इसमें? नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इट इज 2 and 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ रख दिए, बाकी 2 यहाँ रख दिए। सर दोनों नाइट्रोजन के ऊपर 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए वो वाले स्ट्रक्चर में जो आपने बनाया है 3 लाइनों वाला? बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है, अब दिखा रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने को समझाया है कि नाइट्रोजन के उसके ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, अब मैं उसको डिटेल में समझा रहा हूँ। क्रॉस क्वेश्चन
क्यों कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन? मुझे पता है वो चीज, ठीक है? सर आपने ट्रिपल कोवैलेंट में क्या बताया सर अभी तक? क्या क्या सर क्या बताया सर आपने अभी तक ट्रिपल बेटा, मैंने ही बताया है कि जब कोवैलेंट दो बॉन्ड एटम में? के बीच में सर मेरा नेटवर्क चला गया था। तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन दो नाइट्रोजन के शेयर होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 5, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी 2 एज अ लोन पेयर काम कर रहे हैं। These are lone pair and these are सर लोन पे मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। समझ में आई बात? नहीं आई? हेलो सर ये आ गई। अरे सर लोन पेयर है, लोन है बस। बोलो बेटा। यस सर आ गई। ये बस अलोन है, अकेले। हाँ चलिए, अब आप C2H2 का स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। ये होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर C2H2। और बता दूं एग्जाम में इसमें से आएगा, पेपर में, बोर्ड्स में, तो छोड़ के मत जाना। ये आ रहा है बोर्ड में? और क्या? मैम ने सर ये B.P क्या है? बीपी ब्लड प्रेशर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। सर जो ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्यों नहीं बना सकते? तू रोज 4 रोटी खाता है, मैं तेरे को 7 खिलाऊं, खाएगा? सर बाय चांस 4 हो से सीधा सकता है 7 वैसे खा नहीं जाएगा खाऊंगा। तू? सर बंदूक रख दोगे तो? सर कंडीशंस पे डिपेंड तो करता है। अगर नॉर्मल कंडीशन, प्यार से बोल रहा हूँ तो प्लीज खा ले बेटा। सर अगर सब्जी अच्छी हो, सर अगर सब्जी अच्छी नो होगी सर, तो खा नॉर्मल लेंगे। से तो नहीं। फालतू बहस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं खाओगे। तो जितनी जरूरत है वो उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना। आप एक चीज देखो ना, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो उसको फिर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन से क्या करना है? सबसे फास्ट आया है इशिका का स्ट्रक्चर बनके। सर मैंने भी सेंड कर दिया आपको। सर कर दिया सेंड। उत्कर्ष सर कर दिया सेंड। उत्कर्ष का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। मैं पहले 5 स्ट्रक्चर ही लूंगा। उदय का भी सही है। विशेष गणित की कॉपी में पढ़ाई करता है। गुड बेटा विशेष। सर सही बना है। हाँ अच्छा बना बेटा, अच्छा बना। सर मैंने भी भेज दिया। क्या बात सिद्धार्थ, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू सर। सर मैंने भी भेजा।
अक्षिता ऑक्टेट दिखाओ बेटा, तुमने ऑक्टेट नहीं दिखाया, खाली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी है। सब कुछ करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? यस सर ओके। सर मैंने भी भेजा है। सर मैंने भी भेजा है। सर मैंने भी भेज दिया। धन्यवाद हमारे, आपने भेज दिया। मैंने भी भेजा है। चलिए अब हम समझते हैं कैसे बनेगा C2H2 का स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। C2H2, सर एक बार मेरा देख लो। ये आपका स्ट्रक्चर है। सिंपल सा काम है, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, और ये हो गई शेयरिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी कौन सा है, कार्बन कार्बन तो दिखा दो। तो मुझे पता ही है मेरा, ये पता नहीं कौन सा डायग्राम लेकर आता है बीच में, तो जब कुछ बिगड़ जाता है तो समझ जाना मेरी गलती नहीं है, नेट की गलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका स्ट्रक्चर बना दिया है। आशा करता हूँ सर आपने आपको समझ में आया। क्या बेटा? सर आपने ड्यूप्लेट शो नहीं किया। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या सर हाइड्रोजन कर सर डुप्लेट शो बनाया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, दिखेगा। यस सर। सर हम सेम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं दोनों केसेस में, क्रॉस क्या ले क्रॉस। सकते हैं, क्या ले सकते हैं? सर दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है वो सेम ले सकते हैं, जैसे आपने क्रॉस क्रॉस लिया है हाइड्रोजन के साथ भी। बेटा ऐसे मैं, जो तुम बोल रहे हो कहना मुश्किल हो जाता है, तो कांट से दिस वे। सर। वैभव विशाल झा का स्ट्रक्चर अच्छा है, काफी अच्छा बनाया है इसने। पर वैभव ध्यान, अच्छा आप सभी ध्यान रखना, एग्जाम में स्ट्रक्चर पेंसिल से बनना चाहिए। आप सभी 2-3 चीजों का यूज करें, पेंसिल, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। बाकी ग्लिटर पेन, पता नहीं क्या क्या बनना लगाए, मास्टर मेरा भी देख पेन लीजिए। पूरे स्ट्रक्चर को। स्केच पेन। सर मैंने भी। ठीक है, कहीं उसमें आप ग्लिटरिंग करने लग जाए, वाटर कलर से उसको कलरिंग करने लग जाए, ऐसा करेंगे तो मास्टर मार्क्स काट लेगा। प्लीज डोंट डू दिस। मेरा भी देख लीजिए। सर मैंने भी भेजा था सर। चलिए S8 का स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। S8 का स्ट्रक्चर जो बनाएगा उसे नाम मिलेगा। रेसेट का। यस, डू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ S8। सर बैलेंस याद नहीं आ रही इसकी अभी। सोचो, याद नहीं आए, एटॉमिक नंबर याद करो उसका, है ना? सब कुछ परोस के चाहिए प्लेट में, है ना? आदत लगी ना कि पूरा मम्मी प्लेट में सजा के देती है खाना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर सब्जी बन प्लेट गया। में सजा के भी दें आपको, आपके मुंह में डालें, फिर आपके जबड़े को हिला भी दें ताकि आप बाइट कर सको। इतना चलबे, अंडरस्टूड? यस सर। कौन है ये बच्चा? सर इसका शेप बड़ा अजीब था और देखा था मैंने। देखो दिया ही इसलिए है कि थोड़ा बहुत आप वो करो एफर्ट। सर ये नहीं आ रहा है।
सर ये बोर्ड्स में आएगा? ना आए सर। इसमें तुम्हें धमाल मूवी का बड़ा वाला W दिखेगा। सर इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनेगा। सर ये बना के आपको देता, आप ना गुस्सा करने लगते, इसलिए मैंने बनाया है। कोई बात नहीं, ये भी बनेगा। जिसने इस तरह से बनाया है, मेरे को आए ना मैसेज, तो बहुत से बच्चों ने ऐसा बना के भेजा है मेरे को। 3 2 6 5 3 8, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ऐसा भेजा है। सर वैसे अगर ये मैं बना के भेजता तो आपको गुस्सा आता? नहीं आता। आप काट देते? एक सेकंड रुक जा बेटा। 3 2 5 7 8, कुछ ने ऐसा बनाया है। दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि अभी 10th में आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा बनाओगे तो भी सही है। सर ये तो आप काट दोगे ना? कौन सा? W ये वाला? वाला? यस सर। इच्छा पे है बेटा मास्टर के, क्योंकि जनरली पढ़ाया नहीं जाता, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, बेटर स्ट्रक्चर बताते हैं। नहीं सर, लाइन वाला स्ट्रक्चर तो काट ही दोगे ना? हाँ, बट मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ कि कैसे इसको अरेंज करना है। अगर तुम ये बना के दोगे तो ऑब्वियसली बात काट दूंगा। वो करना क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो। सर बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे सल्फर के? बिहार जाएंगे बेटा, लालू की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर ऐसे नहीं हो पाया, मैं तो पता नहीं क्या ही बना दिया इलेक्ट्रॉन के नाम पर। कोई बात नहीं, देखो प्रैक्टिस से आएगा ये सारा कुछ। ये इट इज नॉट अ सिंगल डे गेम, तभी तो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि ये हुई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फिर ये हुई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फिर ये हुई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसे करवाया ही इसलिए जा रहा है कि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। ये स्ट्रक्चर कभी पेपर में आए तो आप घबराए नहीं। तो ये है आपका एसिड स्ट्रक्चर। सर आपने ऑक्टेट नहीं दिखाया। बेटा ऑक्टेट तो उसका ऑलरेडी पूरा हो रखा है, देखो हर एक का ऑक्टेट पूरा है ना। नहीं सर, वो सर्कल की बात कर रहा होगा जो आप। हाँ यस सर। अब ठीक है, फीलिंग बेटर? यस सर। सर एक बार मेरा देख लो। नहीं देखूंगा। और जो आपने ऊपर क्राउन टाइप बनाया है सर, वो क्या है? इस तरह से आप पूरे कर सकते हो इसको, स्ट्रक्चर को। अगर नंबर कटवाने होंगे सर तभी करेंगे ऐसा, तो क्योंकि आपने तो बोला नंबर कट जाएंगे उसमें। तो साफ सफाई से आप काम करो, मास्टर नंबर नहीं काटेगा। और ज्यादा चटक मत बनना मास्टर के आगे। टीचर ना बच्चे के हैंडराइटिंग से पकड़ लेता है कि बच्चा क्या कर रहा है। हैंडराइटिंग मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग से। और ये ना मास्टर के हाथ से नंबर निकालने का आर्ट है, कला है। नंबर सॉरी गलत हो गया, ऐसा है। नंबर मांगे नहीं जाते, नंबर छीन लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर आया समझ में। सर हमारी स्कूल वाली मैम बोल रही थी सर्कल वाला स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता क्योंकि बॉन्डिंग में कोई एंगल नेसेसरी होता है, वो इसके अंदर वो नहीं होता। अग्री, बट आप अपनी मैडम से पूछो ना कि बाकियों में एंगल आपने बताया है। आपने CH4 में हमें बताया है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आपने बताया है हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका एंगल क्या होता है। आपने CCl4 का स्ट्रक्चर बताया है। आपने NH3 का बताया है हमें पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, पर क्यों होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल? अगर आप क्यों स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही हो तो आप इसमें स्ट्रक्चर के लोग क्यों फोर्स कर रही हो हमें? मैम तो सर मैं तो मैम की क्लास ही नहीं करता, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता वो। नहीं, मैं इस पगड़ी नहीं करता हूँ। चाहे कोई स्कूल टीचर हो या कोचिंग के टीचर हो,
अगर आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो जहां तक चांसेस है कि आप इंटरेस्ट खो बैठे हो, ऐसा हो जाता है। बट स्टिल आपको क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि याद रखना इंटरनल्स का नंबर उन्हीं के हाथ में ही है। यस सर। बहुत छोटी भाषा में आपको समझा दिया कि क्यों क्लास लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। सभी का हो गया? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे। इज इट डन? सर मैं भेज भी रहा हूँ लेकिन एक भी नहीं देखा आपने। क्या नाम है तुम्हारा? सर आर्यन। आर्यन, पूरा नाम बताओ। आर्यन त्यागी। नहीं बेटा, तो देख रहा हूँ डाउनलोडेड में आ रहा है, देख रहा हूँ मैं। मैंने भी भेजे थे सर। अब बेटा देखो, सबका नहीं देख सकता है ना, मनुष्य यस सर। वो है, बाउंडेड है। सर फास्टेस्ट फिंगर सर जिसका सबसे पहले आ रहा है सर आप उसी का देख पा रहे हो। हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सॉरी, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, लैटिस स्ट्रक्चर। इतना नहीं पढ़ेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करेंगे इतनी, हम सिंपल सिंपल। सर आपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये। यस सर, मॉड्यूल में। हाँ सर मॉड्यूल में लैटिस। यस सर, आपने लैटिस स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अंदर। लिमिट फिलहाल समझने की कोशिश करो कि आपको जो काइनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एंड इन सॉलिड्स की अगर बात करूं, दे हैव ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन and they are present in the regular crystal structure. Or can I say that ionic compound are crystalline solid? ये दो, देखो सॉलिड जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। देखो इसमें और इसमें जो अंतर होता है ना, वो होता है पैटर्न का। पैटर्न मतलब सर एक में ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। अर्थात ये है that if you look at the structure of crystalline solid, suppose crystalline solid में हेक्सागन का पैटर्न है एटम का, तो पूरे स्ट्रक्चर में वो हेक्सागन का पैटर्न ही फॉलो कर रहा होगा। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, सपोज अमॉर्फस सॉलिड में जो पेंटागन स्ट्रक्चर है वो एक लिमिटेड रेंज तक है, उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा उसमें। अंडरस्टूड? सर इसमें तो सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होगा ना अमॉर्फस में। बेटा मैंने जो समझाया वो समझो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ दो, वो कुछ और चीज है। फिलहाल मैंने आपको दो तरह के सॉलिड समझाए हैं। सॉलिड में एक जो है जिसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो बड़ा ऑर्डर्ड है, दूसरे में नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर इससे उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑक्टेट तो दोनों में कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है, लेकिन अरेंजमेंट बेटा देखो, जितना प्रॉपरली एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उतना स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उतनी ज्यादा उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सर मतलब क्रिस्टलाइन के सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना? मोस्टली अच्छी होती है क्रिस्टलाइन की। डायमंड एग्जांपल। सर खराब कौन सी होती है? अगर मैं बात करूं, सपोज ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हम आपका अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। अगर मैं एक नाइफ लूं और नाइफ से ना कट करूं उसको, तो इसके शार्प एजेस आएंगे, जो कटिंग होके आएगा ना वो एकदम शार्प एज होगा। लेकिन अगर मैं इसको कट करूंगा ना, तो जो कट होके आएगा ना वो टूटा सा होगा। आया हुआ समझ में? यस सर। तो यहाँ पे शार्प कटिंग होगी, यहाँ पे शार्प कटिंग नहीं होने वाली, ठीक है। क्लियर है सभी को?
सर मुझे नहीं है। वो क्लियर है सर दोबारा समझाइए। बेटा यस सर। शार्प कटिंग समझ में नहीं आया। हाँ, बटर है, बटर को काटते हो, शार्प कटिंग आती है ना। यस सर आती है। सर उस और सपोज तुम्हारे पास वो है काले नमक का एक वो है छोटा सा टुकड़ा है, उसको काटोगे चाकू से, तो क्या वो कटेगा? टूट जाएगा ना। सर टच भी सर नहीं इरेगुलर कर कट। प्रॉपर्ली। इरेगुलर कटिंग होगी, ठीक है सर इसका मतलब सर अमॉर्फस जो कंपाउंड्स है सर वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं कह रहा हूँ अमॉर्फस जो कंपाउंड्स है वो ब्रिटल होते हैं, मतलब वो अगर प्रेशर लगाने पे तुरंत टूट जाते हैं और वो क्रिस्टलाइन वाले जल्दी नहीं टूटते। कह सकते हो, प्रेशर लगाने बोल रहे हो? यस सर। प्रेशर लगाने पे टूट जाएगा, हाँ, अमॉर्फस टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके सर। सर क्रिस्टलाइन का और एम्फोरस का सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। आयनिक कंपाउंड सारे NaCl, CHCl, ये सारे क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और सर एमोर्फस। अमॉर्फस एग्जांपल मैं दूंगा, पहले ये पढ़ा दूं। ओके फिलहाल जो मैं समझता हूँ, ये समझ में आया है कि आयनिक कंपाउंड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसके कारण ऑपोजिटली चार्ज आयन एक रेगुलर स्ट्रक्चर में आते हैं क्रिस्टल के। और अब मैं अगर बात करूं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दे हैव high melting point and boiling point. Clear है? ओके। यस सर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो यूजली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। soluble in water and insoluble in organic solvent. सर वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है? कहाँ लिखा है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट? मैंने बोला है soluble in water, तो ये और बेटा हाँ, उसको तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलोगे ना। यस। अच्छा हाँ सर, उसमें कार्बन नहीं होता। इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ मैं, तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। सर पोलर एंड नॉन पोलर। हाँ, मैं उस वे में बताता हूँ कि ionic compound are soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent. Fine. यस सर। ठीक है। अगला, अब आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आयन से ब्रेक होगा और इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट बता दीजिए। हाइड्रोजन और नॉन हाइड्रोजन। क्या क्या क्या? सर पोलर सॉल्वेंट पोलर और का नॉन मतलब पोलर क्या है बेटा? सॉल्वेंट। देखो पोलर का मतलब ये है जिसमें जो मान लो आपका H2O है, तो H2O क्या होगा, इनके ऊपर चार्जेस आएंगे, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, गलत हो गया, माइनस आएगा। जिसमें चार्जेस डेवलप, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें चार्जेस डेवलप हो जाए उसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। यस सर। यस सर। सर किसमें चार्जेस डेवलप हो जाए, सॉल्वेंट में या? सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में। मतलब से सॉल्वेंट के हर एटम पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। सॉल्वेंट के, ऑब्वियसली बात है, जब पोलर का मतलब यही है ना कि चार्जेस डेवलप होते हैं। ओके सर। सर NaCl भी तो वाटर में ही। क्या बोल रहे हो? सर सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी? वही बता रहा हूँ, सॉलिड सर स्टेट आयन में में ब्रेक नहीं होता ना। लिक्विड में इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें फ्री आयन है, वो आयंस फ्री हो जाते हैं। सॉलिड में क्या होता है, वो आयन फ्री नहीं होते हैं। अब फ्री आयन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मैं वही कह रहा हूँ ना, जब उसके पास देखो, हाँ सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो। अब NaCl में है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया और ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा? अभी कंपाउंड बन चुका है, अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है? ओके सर, आ गया सर। चलिए हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो देखिए, मैं बता था आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स होते हैं, पर कोवलेंट कंपाउंड आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ कुछ सॉलिड होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया। यस सर। यस सर, रिटर्न। Properties of covalent compounds. पहला पॉइंट, covalent compounds are usually liquid or gases. Some of them are solid. Okay. अब अगर मैं बात करूं इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो जनरली क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऑब्वियसली बात है, आयनिक बॉन्ड के मुकाबले, आयनिक बॉन्डिंग के मुकाबले कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा वीक होती है, ठीक है? यस सर। चलो वीक होती है बेटा। ऑब्वियसली देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस पर्टिकुलर कोवेलेंट फोर्सेस। सर यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स होती है। नहीं बेटा, वॉन्डर वॉल नहीं होती, वॉन्डर वॉल नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है। ओके सर। ग्रेफाइट में होती Now, है। covalent compounds are insoluble in polar solvent and soluble in non-polar solvent. So they are soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvent. Understood? सर मतलब केरोसिन और इन सब में वो सोल्यूबल होते हैं? Yes, they are soluble. सर व्हाई? बेटा देखो, सॉलिडिटी का बहुत क्राइटेरिया होता है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी,
वो फिर वो समझाना पड़ेगा पूरा, दैट इज नॉट फिजिबल एट दिस स्टेज। आपको सर वो वाटर accept के करना अलावा है। आप बस इतना समझिए, लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जिस तरह का नेचर का सब्सटेंस होता है वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहता है। सर वाटर के अलावा और कोई पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल? बिल्कुल है, ROH, बेंजीन। सिट्रिक एसिड। ये पोलर सॉल्वेंट है आपका। सर नाम सर बता दीजिए, बेंजीन सर होता बोलते है। क्या है? बेटा आर क्या है, कोई भी अल्कोहल ले ले, CH3OH मेथनॉल हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया आपका। इथेनॉल ले लो, पोलर सॉल्वेंट हो गया आपका, अच्छा ओके सर, ओके समझ गया। ठीक है। सर बेंजीन किसी हो का भी सकता है। है। सर नहीं, इथाइन। डाइलेक्ट्रिक बेंजीन कांस्टेंट नॉन क्या होता है? पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। दे आर ओके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर बोलिए। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी क्या जरूरत है मैम बता समझने रही थी हमारी। की? हाँ सर मैम बताई क्या थी पढ़ना स्कूल है? वाली हमारी। सर ये तो क्या बताया? फिजिक्स का है सर टर्म। एक सर तरह का मैम का इलेक्ट्रिक रीजन पोटेंशियल बताया था एनर्जी कुछ। होती है बेटा, एक तरह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो पोलराइजेशन के कारण आती है। सर मतलब जैसे हमने बताया, एक, हाँ बोलो। आप एक इसका रेशियो मान सकते हैं, रेशियो होती है ये। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। नहीं बेटा, ये एप्सिलॉन की रेशियो होती है, रिलेटिव एप्सिलॉन रेशियो, किसी भी सब्सटेंस की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वैक्यूम। सर यहाँ पे लेकिन उसका रूल क्या है? इसका अच्छा, अब आप मुझे बताइए कोई डाउट है इस टॉपिक में? नो सर। सर नो सर। सर लिक्विड और गैस। सर टॉपिक कंप्लीट हो गया? हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? नहीं सर। हाँ, मैं क्या वही सोच रहा था आज। सर अगला टॉपिक सर एक चीज पूछ रही थी। हाँ बोलो। सर जैसे आयनिक कंपाउंड में होता है कि लिक्विड में करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और सॉलिड में नहीं करता, तो ऐसे इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जैसे आयनिक कंपाउंड में होता है कि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता कंडक्ट और लिक्विड में करता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि लिक्विड और गैस में नहीं करता, सॉलिड में करता है? बेटा देखो, criteria of conduction of electricity is free electrons or free ions. If in at any, देखो कोवलेंट बॉन्डिंग में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्या बोलते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। और लिक्विड में रहे या गैस में रहे, आयंस बनने वाले हैं नहीं, आयंस नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कार्य नहीं होगा। होगा किससे? होगा भी तो आपका इलेक्ट्रॉन के कारण, कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वहां होगा, जहां नहीं है वो नहीं होगा। जैसे ग्रेफाइट में है कोवलेंट बॉन्डिंग, फिर भी हो रहा है ना। यस सर, वेंडलॉव प्रोसेस। सर डायमंड में भी होता है क्या? डायमंड में नहीं होता बेटा। सर मैंने आपको जीमेल पे नोट्स भेज दिए हैं, वो जितने भी आपने बोले थे। यस सर, मैंने भी भेज दिए। मैंने भी सर मैं भी भेजता हूँ। यस सर मैंने भी सेंड कर दी। कोई और डाउट? नो सर, नो डाउट। सर मैं भी भेजता हूँ आर्यन त्यागी। Okay, so let's end out today's class, okay? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। Eat, sleep, repeat, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.